یہی الفاظ سن کر نرمین ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا، تمہیں ہمارے ہونے والے بچے کی قسم۔ نرمین کو یوں لگا جیسے وقت ایک پل کے لیے ٹھہر گیا ہو۔ وہ پھولوں سے سجی سیج پر بیٹھی تھی، دل میں ہزاروں خواب اور آنکھوں میں نئی زندگی کی چمک لیے۔ آج اسے اپنی قسمت پر بے حد ناز تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ واقعی اس کی تقدیر کتنی خوبصورت ہے کہ اسے شازم افندی جیسا باوقار اور دلکش شوہر ملا ہے، جس پر شہر کی نہ جانے کتنی لڑکیاں فدا تھیں۔ اسی سوچ میں گم تھی کہ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ شازم لڑکھڑاتے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی تھی اور سانسوں سے شراب کی بو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ نرمین کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی وہ آگے بڑھا اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ نرمین حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے کبھی شازم کو اس حال میں نہیں دیکھا تھا۔ اس لمحے نرمین کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس شخص کی زندگی میں کوئی ایسا راز بھی چھپا ہے جو اس کی دنیا کو یکسر بدل دے گا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شخص کو وہ اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی ہے، وہ کبھی کسی اور کا محبوب بھی رہا ہے، بلکہ کسی معصوم زندگی کا باپ بھی بن چکا ہے۔ وہ رات نرمین کے لیے عجیب الجھنوں اور بے چینی میں گزری۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح کی مدھم روشنی جب کمرے میں پھیلی تو نرمین کی آنکھ کھلی۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر شازم کمرے میں موجود نہیں تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے ایک سفید لفافے پر جا ٹھہری۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے لفافہ اٹھایا اور آہستگی سے اسے کھولا۔ جیسے ہی اس کی نظر اندر موجود کاغذ پر پڑی، اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ چہرے کا رنگ یکدم زرد پڑ گیا اور آنکھوں میں خوف اور حیرت کی پرچھائیاں اتر آئی تھیں، کیونکہ اس کاغذ پر لکھی ہوئی حقیقت اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دینے والی تھی۔ یسریٰ، مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا، تمہیں ہمارے ہونے والے بچے کی قسم۔ یہ چند الفاظ تھے مگر ان میں ایسی تپش تھی جس نے کمرے میں بکھری خوشبو کو لمحوں میں زہر بنا دیا تھا۔ نرمین کے لیے وہ جملہ کسی آسمانی کڑک سے کم نہ تھا، ایک ایسی بجلی جو باہر نہیں گرتی بلکہ انسان کے اندر اتر کر سب کچھ چلا دیتی ہے۔ اس کے کانوں میں گونجتی وہ آواز کسی اجنبی کی نہیں بلکہ شازم افندی کی تھی۔ وہی شازم جو اس وقت اس کا شوہر تھا، جو چند لمحے پہلے تک اس کے اتنا قریب کھڑا تھا کہ سانسوں کی گرمی محسوس ہو رہی تھی، مگر روح کے اعتبار سے وہ کسی اور دنیا کا مسافر لگ رہا تھا۔ حالانکہ کچھ دیر پہلے تک کا منظر بالکل مختلف تھا۔ نرمین اپنی نئی زندگی کے آغاز پر دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں سجی مخملی سیج پر وہ سمٹ کر بیٹھی تھی۔ گلاب اور چنبیلی کے تازہ پھولوں کی مہک نے پورے کمرے کو ایک مدھم خوابناک فضا میں لپیٹ رکھا تھا۔ سرخ عروسی لباس اور بھاری زیورات کے بوجھ کے باوجود اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ وہ خود پر رشک کر رہی تھی اور کیوں نہ کرتی۔ آج اس کی شادی شہر کے سب سے بااثر اور دلکش نوجوان شازم افندی سے ہوئی تھی۔ وہ نام جس کا چرچا ہر محفل میں ہوتا تھا، جس کی شخصیت اور دولت کی کہانیاں اکثر اخباروں اور سوشل حلقوں میں سنائی دیتی تھی۔ کالج کی لڑکیاں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو فخر سمجھتی تھی اور کاروباری دنیا میں اس کا نام کامیابی کی علامت مانا جاتا تھا۔ نرمین ایک سادہ سے متوسط گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ قسمت اسے ایسی زندگی کے دروازے تک لے آئے گی۔ جب شازم کے رشتے کی خبر گھر پہنچی تو پورا خاندان حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں ڈوب گیا تھا۔ ہر کوئی اسے نصیبوں والی کہہ رہا تھا۔ اس کی سہیلیاں بھی رخصتی کے وقت اسے حسد بھری مسکراہٹوں کے ساتھ گلے لگا کر گئی تھی۔ نرمین نے گھونگھٹ کی اوٹ سے کمرے پر ایک نظر ڈالی۔ نفیس فرنیچر، نرم روشنی اور ہر چیز میں جھلکتی عمارت اسے کسی خواب کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی اور آنے والے دنوں کے حسین خیال بن رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب شازم کمرے میں آئے گا تو کیسا ہوگا۔ شاید وہ مسکرا کر بات کرے گا، شاید شرمیلے انداز میں اس سے زندگی کی ابتدا کا وعدہ لے گا۔ اس لمحے دروازہ آہستگی سے کھلا۔ نرمین کا دل ایک دم تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں کا پسینہ دوپٹے سے صاف کیا اور سر مزید جھکا لیا۔ بھاری قدموں کی چاپ قلین پر سنائی دی، مگر ساتھ ہی کمرے کی فضا میں ایک تیز بو پھیل گئی تھی، پھولوں کی خوشبو کو دبا رہی تھی۔ یہ مہنگی شراب اور سگریٹ کی بو تھی۔ شازم لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر آیا اور بیڈ کے قریب آ کر رک گیا۔ نرمین نے نظریں اٹھائے بغیر بھی محسوس کر لیا کہ اس کے قدم سنبھل نہیں رہے۔ جب اس نے ہمت کر کے
कनकखियों से देखा तो वो स्याह शेरवानी में मलबूस था, मगर उसके कॉलर के बटन के खुले हुए थे और टाई बेतरतीब अंदाज में लटक रही थी। आंखें सुर्ख थी और चेहरे पर अजीब सी थकन और बेचैनी फैली हुई थी। वो नशे में था। नरमीन के दिल में हल्की सी घबराहट ने जन्म लिया, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को समझाया। शायद ये आज की खुशी का हिस्सा हो। बड़े घरों की तकरीबात में ऐसा हो जाता है। मगर उसे क्या मालूम था कि ये रात सिर्फ उसकी नई जिंदगी की इब्तिदा नहीं, बल्कि एक ऐसे राज की दहलीज भी है जो उसके ख्वाबों को पूरी दुनिया के सामने बदल कर रख देगी। शाजिम आकर बेड के किनारे बाकायदा बैठा भी नहीं, जैसे उसके कदमों में सकत ही ना रही हो। वो एक बेकाबू से अंदाज में बिस्तर पर गिर सा पड़ा। अगले ही लम्हे उसने नरमीन को अचानक अपनी बाहों में खींच लिया। नरमीन का सांस यकदम हलक में अटक गया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि नरमीन को दर्द महसूस होने लगा। वो घबराकर कुछ कहने ही वाली थी कि शाजिम ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। उसकी सांसों से शराब की तेज बू आ रही थी और आवाज नशे में बोझल हो चुकी थी। फिर उसने वो अल्फाज कहे जो नरमीन की पूरी दुनिया पर कयामत बनकर टूटे। युसरा, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा युसरा। नरमीन के लिए वक्त जैसे वहीं थम गया। उसके जिस्म में दौड़ता खून जैसे अचानक मुंजमद हो गया। उसने बेयकीनी से शाजिम के चेहरे की तरफ देखा। उसके लब हिल रहे थे मगर आंखें बंद थी, जैसे वो किसी और दुनिया में खोया हुआ हो। युसरा, ये नाम उसके जहन में गूंज कर रह गया। और फिर उस जुमले का दूसरा हिस्सा, हमारा होने वाला बच्चा। नरमीन के दिल में एक अजीब सा खौफ उतरने लगा। शाजिम उसे नहीं देख रहा था, ना उससे पहचान रहा था। उसके नशे में डूबे जहन में इस वक्त नरमीन नहीं बल्कि कोई और औरत मौजूद थी, कोई युसरा। नरमीन ने आहिस्ता से नरमीन ने आहिस्ता से खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश की, मगर शाजिम का जिस्म भारी था और बाजू अब भी मजबूती से उसके गिर्द लपेटे हुए थे। वह नीम बेहोशी के आलम में मुसलसल बुड़बुड़ा रहा था। मैं जानता हूँ डैड कभी नहीं मानेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और वो बच्चा, वो हमारी मोहब्बत की निशानी है। ये अल्फाज नरमीन के दिल में किसी खंजर की तरह पेवस्त होते जा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अभी चंद घंटे पहले तक जो आंखें खुशी और फख्र से दमक रही थीं, अब वही आंखें खाली और वीरान महसूस हो रही थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस शख्स को वो अपनी ज़िंदगी का सहारा समझ बैठी है, वह दरअसल किसी और का आशिक निकलेगा। और सिर्फ आशिक ही नहीं, बल्कि किसी आने वाली ज़िंदगी का बाप भी। ये एहसास किसी ज़हर की तरह उसके अंदर फैलने लगा। उसका शोहर उसके पास था, उसके पहलू में था, मगर उसका दिल, उसकी सोच, उसकी मोहब्बत सब किसी और के नाम हो चुकी थी। सुर्ख अरूसी लिबास में बैठी एक दुल्हन के लिए। इससे बड़ी तौहीन शायद कोई और नहीं हो सकती। नरमीन को यूं लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया हो। कुछ ही देर बाद शाजिम की गिरफ्त ढीली पड़ने लगी। उसकी बेरब्त बुड़बुड़ाहट उसकी बेरब्त बुड़बुड़ाहट आहिस्ता-आहिस्ता खामोशी में बदल गई और फिर भारी खर्राटों की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। नशे की शिद्दत ने उसे मुकम्मल तौर पर बेहोश कर दिया था। वो इसी तरह नरमीन के पहलू में बेखबर सो गया। नरमीन ने कांपते हाथों से आहिस्तगी से उसके बाजू हटाए और खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया। वो बिस्तर के दूसरे किनारे जा बैठी। उसका दिल चाह रहा था कि वो चीख उठे, उस शख्स को झंझोड़ कर जगाए और उससे सवाल करे, अगर मोहब्बत किसी और से थी तो मेरी ज़िंदगी में क्यों आए? मुझे क्यों इस झूठे रिश्ते के बंधन में बांधा? क्यों मेरे ख्वाबों को इस तरह धोखा दिया? मगर वो खामोश रही। कमरे में गहरा सन्नाटा फैल चुका था। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक-टिक और शाज़िम की भारी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और इस खामोशी के बीच नरमीन की दुनिया आहिस्ता-आहिस्ता बिखर रही थी। नरमीन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। पूरी रात उसने जागते हुए गुजारी। कभी वो छत को घूरती रहती और कभी अपनी मेहंदी लगी हथेलियों को देखती रहती। वही मेहंदी जो चंद घंटे पहले उसे खुशी और नए रिश्ते की अलामत लग रही थी, अब उसे अपने हाथों पर किसी दाग की तरह महसूस हो रही थी। वो आहिस्ता से उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। आईने में झांका तो सामने नजर आने वाली लड़की उससे खुद अपनी नहीं लगी। सुर्ख अरूसी लिबास, भारी ज़ेवरात और बिखरी हुई आंखें, मगर उस सब के बावजूद वो दुल्हन नहीं लग रही थी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी कुर्बानी के लिए सजा दी गई हो। एक बेजारी के आलम में उसने अपने गले का हार उतारा और मेज पर रख दिया।
फिर कानों के झुमके और कलाइयों की चूड़ियां भी उतार कर एक तरफ रख दी। उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था कि वो इसी बिस्तर पर लेटे जहां चंद लम्हे पहले उसका शोहर किसी और औरत की कस्में खा रहा था। वो आकर कमरे के कोने में पड़े सोफे पर बैठ गई। घुटनों में सर देकर वो खामोशी से रोने लगी। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके जहन में बार बार शाजिम के अल्फाज गूंज रहे थे। हमारे होने वाले बच्चे की कसम। ये जुमला उसके दिल पर किसी हथौड़े की तरह लग रहा था। उसका मतलब साफ था कि बात सिर्फ मोहब्बत तक महदूद नहीं रही थी। मामला उससे कहीं आगे बढ़ चुका था। तो फिर ये शादी क्यों? क्या ये निकाह सिर्फ एक दिखावा था? कि शाजिम के वालिदैन को इस हकीकत का इल्म था, या फिर शाजी ने किसी दबाव के तहत उससे शादी की थी? सवाल बेशुमार थे, मगर जवाब देने वाला शख्स नशे में बेखबर सो रहा था। रात गैर मामूली तौर पर तवील महसूस हो रही थी। हर गुजरता लम्हा नरमीन के दिल पर एक और जख्म लगा रहा था। वो अपने वालिदैन के बारे में सोचने लगी। उनके चेहरों पर झलकती खुशी, उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए फख्र। अगर वो सुबह होते ही वापस घर चली जाती, तो उनकी इज्जत का क्या होता? मुआशरा कभी सच नहीं देखता। इल्ज़ाम हमेशा लड़की पर ही आता है। लोगों के नज़दीक औरत को ही हर हाल में समझौता करना होता है। मगर क्या वो इस रिश्ते के साथ ज़िंदगी गुजार सकती थी, जिसकी बुनियाद ही धोखे पर रखी गई हो? इन्हीं उलझनों में उलझी हुई वो न जाने कब सोफे पर ही ऊँघ गई। सुबह की हल्की रोशनी जब खिड़की से अंदर आई, तो उसकी सूजी हुई आंखों पर चुभने लगी। वो चौंक कर सीधी बैठी, जिसम में अजीब सी थकन और दर्द था, मगर दिल की तकलीफ इस सब से कहीं ज्यादा भारी थी। उसकी नज़र फौरन बेड की तरफ गई। बिस्तर खाली था। शाजिम वहां मौजूद नहीं था। नरमीन ने घबरा कर इधर उधर देखा, शायद वो वॉशरूम में हो, मगर वॉशरूम का दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर कोई नहीं था। एक अनजाना सा खौफ उसके दिल में उतरने लगा। क्या वो उसे छोड़कर चला गया? क्या उसे रात की बातें याद आ गई थी? वह आहिस्ता आहिस्ता बेड के करीब गई। चादर बेतरतीब थी, जैसे कोई जल्दी में उठा हो। इसी साइड टेबल पर जहाँ रात को पानी रखा था, भी खाली रंग का बड़ा सा लिफाफा रखा था। नरमीन के कदम वहीं रुक गए। इस लिफाफे को देखकर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी जाग उठी। कमरे की फिजा गैर मामूली तौर पर खामोश थी। उसने लरजते हुए हाथों से लिफाफा उठाया। उस पर किसी का नाम नहीं लिखा था, बस ऊपर एक सादा सी टेप लगी हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या इसमें तलाक के कागजात हैं? क्या शाजिम ने सुबह होते ही उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, या यही युसरा के बारे में कोई हकीकत है? कुछ लम्हे वो इसी कश्मकश में खड़ी रही। फिर हिम्मत करके उसने लिफाफे की सील खोल दी। अंदर चंद कागजात और कुछ तस्वीर थी। जैसे ही उसने कागजात बाहर निकाले और पहली नजर डाली, उसका पूरा वजूद कांप उठा। उसके हाथ तरसने लगे और कदम डगमगा गए। हलक से एक बेआवाज चीख निकली और वो वहीं कलीन पर बैठ गई। क्योंकि वो आम कागजात नहीं थे, वो एक निकाहनामा था। शाजिम अफंदी और युसरा मलिक का निकाहनामा। नरमीन की आंखें भी यकीनी से तारीख वाले खाने पर जा ठहरी, और अगले ही लम्हे उसका दिमाग चकरा गया। ये निकाह आज का नहीं था, ये 2 साल पहले का था। यानी शाजिम अफंदी गवारा नहीं था, वो पहले से शादीशुदा था। नरमीन के हाथ से कागजात फिसलने लगे, मगर सदमा अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ था। इसी निकाहनामे के साथ एक मेडिकल रिपोर्ट भी लगी हुई थी, जो युसरा के नाम पर थी, और इन सब के नीचे चंद तस्वीर थी। कामते हाथों से नरमीन ने तस्वीर उठाई। पहली तस्वीर देखते ही उसकी सांस जैसे रुक गई। तस्वीर में शाजिम बेहद खुश दिखाई दे रहा था। उसके साथ एक निहायत खूबसूरत लड़की खड़ी थी, और दोनों की गोद में तकरीबन 1 साल का एक नन्हा बच्चा मुस्कुरा रहा था। वो मंजर किसी खुशहाल खानदान की तस्वीर लग रहा था, और इस तस्वीर को देखते हुए नरमीन को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी पूरी जिंदगी एक लम्हे में छीन ली हो। रात शाजिम ने जिस होने वाले बच्चे का जिक्र किया था, अब उसका मतलब नरमीन को समझ आ रहा था। शायद वो इनका दूसरा बच्चा था, क्योंकि एक बच्चा तो पहले ही दुनिया में आ चुका था। मगर हैरत की बात यह थी कि नरमीन को सबसे ज्यादा सदमा निकाहनामे या तस्वीरों से नहीं हुआ था। असल क़यामत तो इस लिफाफे में रखा हुआ एक हाथ से लिखा खत था। वो खत शाजिम की लिखाई में था। नरमीन की नजरें जैसे ही उस पर गईं, वो ठहर सी गईं। उसके हाथ लरसने लगे और दिल की धड़कन बेतरतीब होगी। वो धीरे धीरे वो अल्फाज पढ़ने लगी, नरमीन, मुझे माफ़ कर देना। मैं इतना मजबूत नहीं था कि अपने बाप के सामने खड़ा हो सकता। मेरी सारी जायदाद और विरासत एक शर्त के साथ मुंसलिक थी, कि मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी करूं। युसरा मेरी बीवी है, और मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे लिए सिर्फ एक कागजी ज़रूरत थी, ताकि मैं अपनी विरासत बचा सकूं। तुम्हारा हक महर और एक बड़ी रकम तुम्हारे अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है।
इस कमरे से बाहर निकलने के बाद तुम आज़ाद हो, चाहे तो खुला ले सकती हो, क्योंकि मैं आज रात ही युसरा और अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए लंदन जा रहा हूँ। जब तक तुम ये खत पढ़ोगी मैं जहाज़ में हूँगा। मुझे शाह मुझे ढूँढने की कोई ज़रूरत नहीं। शाज़िम। आखिरी लफ्ज़ पढ़ते ही नरमीन के हाथों से कागज़ात फिसल कर ज़मीन पर बिखर गए। कागज़ी ज़रूरत। ये 2 लफ्ज़ उसके ज़हन में गूंजने लगे। क्या उसकी पूरी ज़िंदगी, उसके ख्वाब, उसके माँ-बाप की इज़्ज़त, सब कुछ सिर्फ़ शाज़िम की दौलत बचाने का एक ज़रिया था? वो शख्स जिसे वो अपनी किस्मत का सबसे बड़ा तोहफ़ा समझ रही थी, दरअसल एक बेरहम खिलाड़ी निकला था। वो शादीशुदा था, एक बच्चे का बाप था और अब शादी की अगली ही सुबह उसे इस तरह छोड़कर जा चुका था जैसे वो उसकी ज़िंदगी में कभी थी ही नहीं। कमरे का सन्नाटा अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। नरमीन की सिसकियां इस आलीशान कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। उसका सुहाग उससे पहले ही उजड़ चुका था, जब वो हकीकत में बस भी नहीं पाया था। बाहर हाल में मेहमानों की आवाजें आ रही थी। कहीं कहके थे, कहीं नाश्ते की तैयारियों की खनक। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसी घर के एक कमरे में एक लड़की की जिंदगी टूट कर बिखर चुकी है। नरमीन ने आहिस्ता से सर उठाया और सामने आईने में खुद को देखा। सुर्ख अरूसी लिबास अब उसे लिबास नहीं बल्कि कफन लग रहा था। उसने झुककर जमीन से वो तस्वीर उठाई। तस्वीरों में शाज़िम मुस्कुरा रहा था, खुश और मुतमईन। उसके साथ युसरा थी और उनकी गोद में एक नन्हा सा बच्चा। वो मंजर एक मुकम्मल और खुशहाल खानदान का लग रहा था। नरमीन के अंदर नफरत की एक शदीद लहर उठी। तुमने मेरे साथ खेल खेला है शाजिम अफंदी, उसने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में खुद से कहा। तुम्हें लगता है कि चंद करोड़ रुपए फेंक कर तुम सुकून से अपनी जिंदगी गुजार लोगे? उसने आंसू पोंछे। अब उसकी आंखों में सिर्फ दुख नहीं था, वहां एक अजीब सी सर्दी और अज़म की चमक पैदा हो चुकी थी। तुम भाग गए हो, उसने धीरे से कहा, लेकिन याद रखना, ये रनमीन अब तुम्हें भूलने वाली नहीं। तुमने मुझे मोहरा समझकर इस्तेमाल किया है, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि खेल कैसे पलटा जाता है। सुबह के 9 बज रहे थे। अफंदी हाउस का वसी डाइनिंग हॉल मुख्तलिफ किस्म के नाश्तों से सजा हुआ था। मेज पर नफीस बर्तनों में तरह तरह के खाने रखे गए थे। बहराम अफंदी, जो इस घर के सरबराह और शहर के मारूफ बिजनेस टाइकॉन थे, अपनी व्हील चेयर पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर एक मुतमईन सी मुस्कुराहट थी। बेटे की शादी के बाद वो खुद को हल्का महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने जिंदगी की एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। उन्होंने अखबार तय करते हुए आवाज दी, कोई है? एक मुलाजिम फौरन आगे बढ़ा। शाजिम और बहू अभी तक नीचे नहीं आए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। मुलाजिम अभी जवाब देने ही वाला था कि सीढ़ियों से कदमों की आहट सुनाई दी। बहराम अफंदी ने मुस्कुराकर सर उठाया, मगर अगले ही लम्हे उनकी मुस्कुराहट ठहर गई। सीढ़ियों पर नरमीन खड़ी थी, वही नरमीन जिसे वो कल अपनी बहू बनाकर इस घर में लाए थे, मगर इस वक्त वो किसी नई दुल्हन जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा सपाट था, आंखें सूजी हुई थी और उसी लिबास जगह जगह से शिकन ज़दा था। जेवरात कहीं नजर नहीं आ रहे थे और बाल बिखरे हुए थे। नरमीन बेटा, बहराम अफंदी ने परेशानी से कहा, खैरियत तो है? ये क्या हाल बना रखा है और शासिम कहाँ है? नरमीन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई डाइनिंग टेबल के करीब आ गई। उसके हाथ में वही खाकी रंग का लिफाफा था। चंद लम्हे वो खामोश खड़ी रही, फिर उसने बहराम अफंदी की तरफ देखा। बाबा, उसकी आवाज में ऐसी टूट फूट थी जो सीधा दिल में उतर जाए। आपका बेटा जा चुका है। बहराम अफंदी की पेशानी पर बल पड़ गई। जा चुका है? क्या मतलब? कहाँ गया है वो? ऑफिस से कोई इमरजेंसी कॉल आई थी क्या? नरमीन ने आहिस्ता से वो लिफाफा मेज पर रख दिया और फिर पहली बार उसकी आवाज में तल्खी उभरी। नहीं बाबा, वो अपनी असल बीवी और बच्चों के पास चला गया है। नरमीन के लबों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट उभरी, वो मुस्कुराहट जिसमें दर्द भी था और तस्दीक भी। नहीं बाबा, ऑफिस नहीं गया वो, उसने आहिस्ता मगर वाज़िह लहजे में कहा। वो अपनी असल फैमिली के पास चला गया है, लंदन हमेशा के लिए। ये कहते हुए उसने वो खाकी लिफाफा मेज पर बहराम अफंदी के सामने रख दिया। पढ़ लीजिए इसे। उसकी आवाज में टूटे हुए शीशों की किरचियां थीं। देख लीजिए, आपके फर्माबरदार बेटे ने मुझे मुंह दिखाई में क्या तोहफा दिया है। बहराम अफंदी के हाथ बेख्तियार कांपने लगे। उन्होंने आहिस्तगी से लिफाफा खोला। अंदर से निकलने वाले कागजात एक एक करके उनके सामने फैलने लगे। निकाहनामा, युसरा की तस्वीर, बच्चे की रिपोर्ट और आखिर में शाजिम का वो खत। जूं जूं उनकी नज़र इन तहरीरों पर दौड़ती गई, उनके चेहरों का रंग सर्द पड़ गया था। आंखों में हैरत, दुख और शर्मिंदगी के साए गहरे होते जा रहे थे। उनकी सांसें बेतरतीब होने लगी। ये मुमकिन नहीं, वो मुश्किल बोल सके। शाजिम शादीशुदा? बच्चा? जी बाबा।
नरमीन की आवाज़ में अब सब बाकी नहीं रहा था। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वो अचानक उनके कदमों के पास घुटनों के बल बैठ गई। आप तो कहते थे शाजिम हीरा है, उसकी आवाज़ कांप रही थी। आपने कहा था वो मुझे रानी बनाकर रखेगा, मगर उसने तो एक ही रात में मुझे उजाड़ दिया बाबा। मुझे जिंदा दरगोर कर दिया। वो सिसक उठी। अब मैं कहाँ जाऊँ? किसको मुँह दिखाऊँ? मेरे माँ-बाप ये सच सुनेंगे तो जीते जी मर जाएँगे। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। मुझे इंसाफ चाहिए बाबा, मुझे इंसाफ चाहिए। नरमीन की चीखें बहराम अफंदी के ज़मीर पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी। अचानक उन्होंने सीने पर हाथ रखा, शदीद दर्द की एक लहर उनके बाएं बाजू से होती हुई दिल तक जा पहुंची। उनके चेहरे पर पसीना नमूदार हो गया और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्होंने लब हिलाए, नरमीन बेटा, और अगले ही लम्हे व्हील चेयर से एक तरफ ढलक गए। घर में अचानक कोहराम मच गया। मुलाजिम इधर उधर दौड़ने लगे। किसी ने डॉक्टर को फोन किया, किसी ने एम्बुलेंस बुलाई। चंद ही मिनटों में डॉक्टर पहुंच गए, मगर उनके चेहरों के तासुरात सब कुछ बयान कर रहे थे। हार्ट अटैक बहुत शदीद था। बहराम अफंदी की सांसें गिनती की रह गई थी। ऑक्सीजन मास्क के पीछे उनकी आंखें बेचैनी से किसी को तलाश कर रही थी, जैसे वो कोई अहम बात कहना चाहते हों। उन्होंने बड़ी मुश्किल से लब हिलाए। वकील कमाल साहब को बुलाओ। कमरे में मौजूद सब लोग चौंक गए। नरमीन कमरे के एक कोने में खड़ी थी। उसका जिस्म अब भी लरस रहा था। उसे यूं लग रहा था जैसे शाजिम के बाद अब उसका आखिरी सहारा भी हाथ से निकलने वाला है। चंद ही देर में कमाल साहब, जो अफंदी खानदान के पुराने और वफादार वकील थे, जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल हुए। सर, मैं आ गया हूँ, हुक्म करें। बहराम अफंदी ने कमजोर हाथ से इशारा किया। नरमीन, यहाँ आओ। नरमीन आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आई। बहराम अफंदी ने उसका हाथ अपने ठंडे और कांपते हुए हाथ में ले लिया। उनकी आंखों में शदीद नदामत थी। मुझे माफ कर देना बेटी। उनकी आवाज टूट रही थी। मेरी तरबियत में कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। मेरे खून ने तुम्हें धोखा दिया। वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, मगर मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। उन्होंने वकील की तरफ देखा। कमाल, कागजात तैयार करो अभी, इसी वक्त। कमाल साहब चौंके। कैसे कागजात? बहराम अफंदी ने गहरा सांस लिया। मेरी तमाम जायदाद, फैक्ट्रियां, बैंक बैलेंस, ये घर, सब कुछ। वो लम्हा फिर रुके। सब कुछ नरमीन के नाम कर दो। कमरे में मौजूद हर शख्स साकित रह गया। मैं अपनी जिंदगी में गिफ्ट डैड और पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए सब कुछ नरमीन को मुंतकिल कर रहा हूँ। मेरे बाद इस जायदाद की वारिस सिर्फ नरमीन होगी। शाजिम को एक रुपया भी नहीं मिलेगा। कमाल साहब हैरान रह गए। सर, आप होश में तो हैं? ये बहुत बड़ा फैसला है। शाजिम साहब आपके इकलौते बेटे हैं। बेराफवती की आंखों में अचानक सख्ती आ गई। वो बेटा नहीं, एक बुज़दिल इंसान है। उनकी आवाज में गैर मुतवक्का कुव्वत आ गई। उसने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की है। ये उसका कफ़ारा है। उन्होंने वकील की तरफ देखते हुए कहा, लिखो कमाल, वरना मैं सुकून से मर नहीं सकूंगा। अगले आधे घंटे में घर का माहौल किसी अदालत की तरह संजीदा हो चुका था। वकील कमाल साहब ने जल्दी जल्दी कागजात तैयार करवाए। चंद करीबी अफराद को गवाह बनाया गया और एक एक करके सबने दस्तखत किए। आखिर में कागजात बहराम अफंदी के सामने रखे गए। उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, मगर उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ कलम उठाया और आखिरी दस्तखत कर दिए। जैसे ही कलम कागजात से जुदा हुआ, उन्होंने एक गहरी सांस ली। फिर अपनी धुंधलाई हुई निगाहों से नरमीन की तरफ देखा। अब तुम कमजोर नहीं हो बेटी। उनकी आवाज बहुत धीमी हो चुकी थी। अब तुम अफंदी ग्रुप की मालकन हो। अब कोई तुम्हें झुका नहीं सकेगा। वो लम्हा भर रुके, फिर बड़ी मुश्किल से बोले, जब शाजिम वापस आए तो उसे बताना कि बाप की नाफरमानी और एक औरत की तस्लील का अंजाम क्या होता है। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। अगले ही लम्हे मॉनिटर पर चलती हुई लकीर सीधी होगी। मशीन की मुसलसल बीप ने कमरे की खामोशी को चीर दिया। बहराम अफंदी इस दुनिया से जा चुके थे। नरमीन के सर पर रखा शफरत का आखिरी साया भी उठ गया था, मगर मरते मरते वो उसे एक ऐसी ताकत दे गए थे जिससे अब उसे अपनी जिंदगी की जंग लड़नी थी। 3 दिन बाद लंदन से आने वाली फ्लाइट लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी थी। शाजिम अफंदी स्या चश्मा लगाए तेजी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। लंदन पहुंचते ही उसे वकील कमाल साहब का फोन आ गया था कि बहराम अफंदी को शदीद हार्ट अटैक हुआ है और वो जामबर ना हो सके। यह खबर सुनकर उसके दिल में अजीब सी घबराहट पैदा हो गई थी। एक तरफ बाप के इंतकाल का दुख था और दूसरी तरफ एक अनजाना खौफ।
کہیں باپ نے غصے میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر لیا ہو جس کا نقصان اسے اٹھانا پڑے گا۔ مگر پھر وہ خود کو تسلی دیتا رہا، آخر وہ بہرام افندی کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ناراضگی اپنی جگہ، مگر جائیداد کسی اور کو دینا ممکن ہی نہیں تھا۔ یسرا نے بھی اسے یہی سمجھایا تھا، جاؤ سب کچھ سنبھالو، اب وہ سب تمہارا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ شازم سیدھا افندی ہاؤس پہنچا۔ گھر کے باہر اب بھی سوگ کا ماحول تھا، دراتیں لگی ہوئی تھی اور چند قریبی رشتہ دار آہستہ آہستہ واپس جا رہے تھے۔ فضا میں ایک خاموش اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ شازم گیٹ سے اندر داخل ہوا تو ملازموں نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔ کسی نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال نہیں کیا۔ وہ سیدھا لاؤنج میں گیا۔ سامنے دیوار پر بہرام افندی کی بڑی سی تصویر آویزاں تھی، جس پر تازہ پھولوں کے ہار چڑھائے ہوئے تھے۔ ڈیڈ! شازم کی آواز بھر آ گئی۔ اسی لمحے وکیل کمال صاحب صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آئے۔ آ گئے آپ شازم صاحب؟ ان کے لہجے میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ شازم نے پریشان ہو کر پوچھا، یہ سب کیسے ہو گیا کمال انکل، اور جنازہ آپ لوگوں نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، انہیں کندھا دینا میرا حق تھا۔ اچانک اوپر سے ایک سرد اور مضبوط آواز گونجی، حق جتانے کے لیے رشتے نبھانے پڑتے ہیں شازم صاحب، اور آپ نے تو وہ سارے رشتے اسی رات توڑ دیے تھے جس رات آپ یہاں سے بھاگے تھے۔ شازم چونک کر اوپر دیکھنے لگا۔ سیڑھیوں سے نرمین آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھی۔ وہ اب سرخ عروسی لباس میں نہیں تھی، اس نے سادہ مگر نفیس سفید لباس پہن رکھا تھا۔ سر پر دوپٹہ باوقار انداز میں رکھا ہوا تھا اور چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا اعتماد اور وقار تھا۔ وہ معصوم اور ٹوٹی ہوئی لڑکی نہیں لگ رہی تھی، وہ ایک مضبوط عورت نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے شازم اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسے توقع تھی کہ نرمین یا تو گھر چھوڑ کر جا چکی ہوگی یا کسی کمرے میں رو رہی ہوگی۔ تم؟ اس نے حیرت اور غصے سے کہا۔ تم ابھی تک یہاں ہو؟ میں نے خط میں کیا لکھا تھا؟ اس کے لہجے میں سختی آ گئی۔ اور تم نے ڈیڈ کو کیا بتایا؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے؟ اگر تم انہیں وہ سب نہ بتاتی تو شاید وہ زندہ ہوتے۔ نرمین اب اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، وہاں صرف سرد حقارت تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، غلطی آپ کی ہے شازم افندی، اور سزا بھی اب آپ کو ہی بھگتنی ہوگی۔ میری وجہ سے؟ نرمین کے لبوں پر ایک سرد اور تنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اپنے گناہوں کا بوجھ میرے کندھوں پر مت ڈالے شازم صاحب، بہرام صاحب کی موت کی وجہ میں نہیں، بلکہ وہ دھوکے ہیں جو آپ نے ہم سب کے ساتھ کیا۔ وہ لمحہ بھر رکے، پھر نہایت سنجیدگی سے بولے، اور جہاں تک جنازے کی بات ہے تو بہرام صاحب نے خود وصیت کی تھی کہ ان کا جنازہ ہرگز نہ روکا جائے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا نافرمان بیٹا ان کی میت کو کندھا دے۔ یہ سنتے ہی شازم کے چہرے پر غصہ نمایاں ہو گیا۔ بس کرو، وہ چیخا، اپنی زبان بند رکھو۔ تم ہوتی کون ہو میرے اور میرے باپ کے درمیان بولنے والی؟ اس نے لاؤنج کے ارد گرد نظر دوڑائی۔ یہ میرا گھر ہے اور تم یہاں صرف ایک وقتی مہمان تھی۔ میں تمہارا حق مہر دے چکا ہوں، اب تمہارا اس گھر میں کوئی تعلق نہیں۔ پھر وہ مڑا اور تیز لہجے میں کمال صاحب سے بولا، کمال انکل، اس لڑکی کو ابھی اسی وقت یہاں سے نکالیں اور مجھے ڈیڈ کی وصیت کے کاغذات دکھائیں۔ مجھے بزنس اور اکاؤنٹس کا کنٹرول سنبھالنا ہے۔ اس نے بے صبری سے گھڑی کی طرف دیکھا۔ یسرا اور میرا بیٹا لندن میں میرا انتظار کر رہی ہیں، مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ کمال صاحب نے آہستہ سے گلا صاف کیا اور میز پر رکھی ایک فائل اٹھا لی۔ شازم صاحب، بہتر ہوگا آپ پہلے بیٹھ جائیں، معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ شازم چونک کر ان کی طرف مڑا۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز بلند ہوگی۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، ساری جائیداد قانونی طور پر میری ہے۔ اسی دوران نرمین سکون سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور پریشانی کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے قریب کھڑے ملازم کو اشارہ کیا، اصغر، شازم صاحب کے لیے پانی لے آؤ، لگتا ہے آج ان کے حلق میں کانٹے اٹکنے والے ہیں۔ شازم نے غصے سے نرمین کو گھورا، مگر پھر فوراً کمال صاحب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پڑھیے، کیا لکھا ہے ان کاغذات میں؟ کمال صاحب نے علق درست کی اور فائل کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ شازم صاحب، بہرام افندی صاحب نے اپنے انتقال سے چند گھنٹے پہلے مکمل ہوش و حواس میں ایک گفٹ ڈیڈ اور پاور آف اٹرنی پر دستخط کیے تھے۔ وہ لمحہ پھر رکے، پھر واضح الفاظ میں بولے، جس کے مطابق افندی گروپ آف انڈسٹریز، یہ کلفٹن والا بنگلہ، اسلام آباد کے فارم ہاؤسز اور تمام اکاؤنٹس کے مکمل مختار اور قانونی وارث ان کی بہو بی بی نرمین افندی ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں جیسے ایک دھماکہ ہو گیا۔ شازم ساکت رہ گیا۔
चंद लम्हों तक उसे यकीन ही ना आया कि उसने सही सुना है। फिर अचानक वो गुस्से से धड़ा, "ये बकवास है।" उसकी आवाज़ पूरे लाउंज में गूंज गई। "ये नामुमकिन है। डैड ऐसा कभी नहीं कर सकते।" उसने उँगली उठाकर नरमीन की तरफ इशारा किया। इस चालाक औरत ने ज़रूर उनसे ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए होंगे। वो बीमार थे, उनकी हालत ठीक नहीं थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ा। "मैं इस वसीयत को नहीं मानता।" गुस्से से बेकाबू होकर वो नरमीन की तरफ लपका, जैसे उसे झंझोड़ देगा। "तुमने क्या जादू किया मेरे बाप पर? तुम साज़िशी औरत हो। तुमने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है, ये सब मेरा है, मेरा।" मगर नरमीन अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिली। वो सुकून से बैठी रही। फिर उसने आहिस्ता से सर उठाया और सीधे शाज़िम की आँखों में देखा। उसकी निगाह में ऐसा रौब और एतमाद था कि शाज़िम के उठे हुए हाथ खुद ब खुद हवा में रुक गए थे और इसी लम्हे नरमीन के होंठों पर एक हल्की-सी मुस्कुराहट, मगर खतरनाक मुस्कुराहट उभरी। "हाथ नीचे रखिए शाज़िम साहब।" नरमीन की आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें ऐसी सख्ती थी जो सीधा दिल में उतरती थी। "ये घर अब मेरा है और इस घर के असूल भी अब मेरे हैं। आप इस वक्त अपनी जायदाद में नहीं बल्कि मेरी मलकियत में खड़े हैं। अगर आपने बदतमीजी की तो मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाकर आपको बाहर करवाने में एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगी।" "तुम?" शाजिम के लबों से बमुश्किल लफ्ज निकले। वो हैरत से उसे देख रहा था। ये वही लड़की थी जो चंद दिन पहले उसके सामने रो रही थी, मगर आज उसकी आंखों में खौफ का नामो निशान तक नहीं था। नरमीन आहिस्ता से खड़ी हुई। "आपने मुझे कागजी बीवी समझा था ना?" उसकी आवाज में अब तंज साफ झलक रहा था। "सोचा था कि मुझे इस्तेमाल करके फेंक देंगे और दौलत भी बचा लेंगे?" वो चंद कदम आगे बढ़ी और शाजिम के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। "तो सुन लीजिए शाजिम अफंदी, अब मैं ही हकीकत हूँ," उसने धीरे मगर वासिया लहजे में कहा। "आपकी वो युसरा और आपकी वो मोहब्बत अगर अब जिंदा भी रहेगी तो मेरे दस्तखतों के सहारे।" शाजिम की आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठी, मगर नरमीन की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा मज़बूत होगी। "आपने मुझे रास्ते का पत्थर समझा था, मगर अफ़सोस वो पत्थर अब पहाड़ बनकर आपके सामने खड़ा है।" शाज़िम ने बेबसी से कमाल साहब की तरफ देखा। "कमान अंकल, कुछ तो बोले, यह सब गैर कानूनी है। मैं कोर्ट जाऊँगा, मैं इस फैसले को चैलेंज करूँगा।" कमाल साहब ने गहरा सांस लिया और आहिस्तगी से सर हिला दिया। "आपको अदालत जाने का पूरा हक है शाजिम साहब, मगर बहराम साहब ने हर चीज़ की मुकम्मल वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई है। डॉक्टर्स की टीम भी इस बात की गवाह है कि वो मुकम्मल होशो हवास में थे।" उन्होंने संजीदगी से कहा। "अदालत में ये केस जीतना आपके लिए तकरीबन नामुमकिन होगा, और अगर मामला बाहर निकला तो बदनामी अलग होगी। बेहतर यही है कि आप नरमीन बीबी से बात करके मामला हल करने की कोशिश करें। अब सब कुछ इन्हीं के इख्तियार में है।" ये सुनकर शाजिम को यूं लगा जैसे नरमीन उसके कदमों के नीचे से खिसक गई हो। वो लंदन में ऐशो उशरत के ख्वाब देख रहा था। युसरा से वादा करके आया था कि वो करोड़ों की दौलत लेकर वापस आएगा, मगर यहाँ वो खाली हाथ खड़ा था। और वो लड़की जिसे वो एक मामूली सी रुकावट समझकर छोड़ गया था, आज उसकी तकदीर की मालकिन बन चुकी थी। गुस्से में उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसने करीब रखा हुआ गुलदान उठाया और पूरी कुव्वत से दीवार पर दे मारा। गुलदान टुकड़े-टुकड़े होकर फर्श पर बिखर गया। "मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा नरमीन," वो चीखा। "मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं, ये सब मेरा है। तुमने धोखे से छीना है।" नरमीन ने सुकून से अपनी चादर दुरुस्त की। उसके चेहरे पर कोई इज़्तिराब नहीं था। चीखे, चिल्लाए, तोड़-फोड़ करे, जो जी चाहे करें, मगर हकीकत नहीं बदलेगी। फिर वो आहिस्ता से मुड़ी और मुलाजिम की तरफ देखकर बोली, "असगर मेहमान के लिए गेस्ट रूम खोल दो।" वो लम्हा भर रुकी, फिर सर्द लहजे में मज़ीद कहा, "और ख़याल रखना, घर के अंदरूनी हिस्से में ये बगैर इजाज़त दाखिल ना हो।" ये कहकर नरमीन सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई और सुकून से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। शाज़िम वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। आज उसका गुरूर, उसकी दौलत, उसका तकब्बुर, सब कुछ उस लड़की के कदमों तले बिखर चुका था, जैसे वो कभी कुछ समझता ही नहीं था। अब अफंदी हाउस का गेस्ट रूम शाज़िम की पनाहगाह बन चुका था। वही घर जहाँ वो कभी शहज़ादी की तरह पला करती थी, आज वह एक अजनबी मेहमान की तरह ठहरा हुआ था। रात काफ़ी गुज़र चुकी थी, मगर शाज़िम की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बार-बार कमरे में चक्कर लगा रहा था। उसके हाथ में मोबाइल था और स्क्रीन पर एक नाम बार-बार चमक रहा था, युसरा। पिछले आधे घंटे से वो हिम्मत जमा कर रहा था कि उसे कॉल करे, मगर अल्फाज उसके पास नहीं थे। वो उसे क्या बताता कि जिस दौलत के ख्वाब दिखाकर वो उसे यहाँ छोड़कर आया था, वो दौलत अब उसके हाथ से निकल चुकी है। कि जिस लड़की को वो बेवक़्त समझकर छोड़ गया था, आज वही उसकी किस्मत की मालकिन बन चुकी है। आखिरकार उसने गहरा सांस लिया और कॉल बटन दबा दिया।
कॉल फ़ौरन रिसीव होगी। हाँ शाज़िम, दूसरी तरफ से युसरा की आवाज़ आई। क्या हुआ, सब ठीक हो गया? थैंक गॉड शाज़िम, तुमने आखिरकार फ़ोन कर ही लिया। दूसरी तरफ से युसरा की आवाज़ आई, जिसमें बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। मैं कब से तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ। क्या हुआ? डैड का जनाज़ा हो गया, वकील से मुलाकात हुई और तुम कब वापस आ रहे हो? वो बगैर रुके बोलती जा रही थी। और सुनो, मैंने यहाँ लंदन में एक ज़बरदस्त अपार्टमेंट देखा है। लोकेशन भी बेहतरीन है, तुम आ जाओ तो फ़ौरन डील फाइनल करते हैं। शाज़िम ने खामोशी से आंखें बंद कर ली। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे उभर आए थे। उसने गहरी सांस ली। युसरा, मेरी बात गौर से सुनो। दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी छा गई। क्या हुआ शाज़िम? युसरा फौरन चौंक गई। तुम्हारी आवाज़ क्यों बदल गई है? सब ठीक तो है? शाज़िम ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। डैड ने सब कुछ बदल दिया युसरा। उसकी आवाज़ पर आ गई। मरने से पहले ही उन्होंने अपनी वसीयत तब्दील कर दी थी। क्या मतलब? युसरा की आवाज़ फौरन तेज़ हो गई। वसीयत बदल दी थी? तो किसके नाम की? किस ट्रस्ट या चैरिटी को दे दी क्या? शाजिम के गले में अल्फाज जैसे अटक गए। नहीं, उसने बामुश्किल कहा, नरमीन के नाम। चंद लम्हों के लिए दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर अचानक युसरा की चीखती हुई आवाज गूंजी, क्या? शाजिम, क्या तुम पागल हो गए हो? वो लड़की, वो मामूली सी लड़की जिसे तुम सिर्फ एक मजबूरी कहते थे, तुम्हारे डैड ने सारी जायदाद उसके नाम कर दी। उसकी आवाज में यकीन से ज्यादा गुस्सा था। ये कैसे मुमकिन है? तुम उनके इकलौते बेटे हो। यही हकीकत है युसरा। शाजिम ने झंझलाकर दीवार पर मुक्का मारा। पावर ऑफ अटर्नी, गिफ्ट डैड, सब कुछ उसके नाम है। अफंदी ग्रुप, बंगला, फार्म हाउसेस, हत्ता के बैंक्स अकाउंट भी। वह थके हुए लहजे में बोला, मैं इस वक्त अपने ही घर में एक अजनबी की तरह रह रहा हूँ, गेस्ट रूम में, जैसे कोई मेहमान हूँ। युसरा चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसकी आवाज बदल गई। अब उसमें ना हमदर्दी थी और ना ही परेशानी, बल्कि हुक्म और हकारत था। शाजिम, तुम वाकई बहुत बेवकूफ़ निकले। उसके अल्फाज सर्द और सख्त थे। तुम वहां बैठे तमाशा देखते रहे और वो लड़की सब कुछ ले उड़ी। मुझे ये मत बताओ कि तुम कुछ नहीं कर सकते। वो तल्खी से बोली, ये पाकिस्तान है, वहाँ हर चीज़ पैसों से खरीदी जा सकती है। शाजिम खामोश रहा। युसरा की आवाज़ मजीद सख्त होगी। इस वकील को पकड़ो, उसे पैसे दो, जो मांगे दे दो, बस कागजात में तब्दीली करवा लो। युसरा, मैंने कोशिश की थी, तुम्हारी कोशिश काफ़ी नहीं थी। उसने फौरन उसकी बात काट दी। किसी तरह पुरानी तारीख में नया वसीयतनामा बनवा लो या कोई कानूनी चाल चलो। मुझे तरीका नहीं जाना, मुझे सिर्फ नतीजा चाहिए। उसकी आवाज़ में लालच साफ झलक रहा था। वो जायदाद हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए। हमारे बच्चे का मुस्तकबिल इसी पर मुनहसर है। शाजिम के दिल पर जैसे बोझ पड़ता जा रहा था, मगर युसरा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और सुनो, अगर तुम खाली हाथ वापस आए तो याद रखना, लंदन में जिंदगी इतनी आसान नहीं है। मैं यहाँ किसी नाकाम आदमी का बोझ उठाने के लिए नहीं बैठी। ये सुनकर शाजिम को यूं लगा जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर उतार दिया हो। उसने आहिस्ता से कहा, युसरा, तुम ये क्या कह रही हो? उसकी आवाज में दुख साफ था। मैं तुम्हारा शोहर हूँ, हम एक खानदान है। नरमीन ने एक लम्हे के लिए उससे गौर से देखा, फिर धीमी मगर काटदार आवाज में कहा, हाथ नीचे रखे शाजिम साहब, ये घर अब मेरा है और उसके असूल भी मेरे हैं। आप इस वक्त अपनी जायदाद में नहीं बल्कि मेरी मलकियत में खड़े हैं। अगर बदतमीजी की तो मैं सिक्योरिटी बुलाकर आपको अंदर से निकलवा सकती हूँ। शाजिम के चेहरे पर हैरत और गुस्सा यकसर नजर आ रहा था। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये वही नरमीन है जो सुहाग रात को उसके कदमों में रो रही थी। नरमीन ने कदम बढ़ाया, उसका अंदाज अब मुकम्मल संजीदा और बावकार था। आपने मुझे कागजी बीवी समझा था कि मैं सिर्फ इस्तेमाल के बाद फेंक दी जाऊंगी और आप अपनी दौलत बचाएंगे। तो सुन ले शाजिम अफंदी, अब मैं हकीकत हूँ, आपकी वो युसरा, आपका वो प्यार। सब कुछ अगर चलना है तो मेरे दस्तखत से चलेगा। आपने मुझे रास्ते का पत्थर समझा था, लेकिन अफसोस, वो पत्थर अब पहाड़ बनकर आपके रास्ते में खड़ा है। शाजिम ने बेबसी से कमाल साहब की तरफ देखा, मगर वकील की आंखों में नरमी के साथ सख्ती भी झलक रही थी। कमाल अंकल, कुछ तो बोले, ये गैर कानूनी है। मैं कोर्ट जाकर ये वसीयत चैलेंज करूंगा। कमाल साहब ने अफसोस भरी नजरों से उसे देखा। आप कोर्ट जा सकती हैं शाजिम साहब, मगर बहराम अफंदी ने हर चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई है। डॉक्टर्स की टीम भी गवाह है कि वो मुकम्मल होशो हवास में थे। दुनिया के महंगे तरीन वकील भी इस वसीयत को नहीं तोड़ सकता। सब कुछ नरमीन बीबी के हाथ में है और यही हकीकत है। शाजिम को लगा जैसे जमीन उसके पैरों से निकल गई हो।
लंदन में यूसरा को खुश करने के ख्वाब, करोड़ों रुपए के वादे, सब बर्बाद। अब वो यहाँ एक फ़कीर की तरह खड़ा था और वो लड़की जिसे उसने ठुकराया अब उसकी किस्मत की मालकिन थी। गुस्से में वो पास पड़ा हुआ गुलदान उठाकर दीवार पर दे मारने लगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा नरमीन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये सब मेरा है, तुमने धोखे से जीना है। नरमीन ने सुकून से अपनी चादर सीधी की और नरमी से जवाब दिया, चखें, चिल्लाएं, तोड़ फोड़ करें, जो चाहे करे, हकीकत नहीं बदलेगी। फिर उसने मुलाजिम की तरफ इशारा किया, अस्कर, मेहमान के लिए गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोल दो और ख्याल रखो घर के अंदर वाले हिस्से में बगैर इजाज़त ना आए। ये कहकर नरमीन मुड़ी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शाजिम उसे देखता रह गया। आज उसका गरूर, दौलत और तकब्बुर, सब कुछ उस लड़की के जूतों तले रोन दिया गया था, जिसकी कोई हैसियत नहीं समझी जाती थी। अफंदी हाउस का गेस्ट रूम शाजिम का मस्कन था, वही घर जहाँ वो शहजादा बनकर पला बढ़ा। आज वहाँ एक नापसंदीदा मेहमान की तरह मुकीम था। रात का पिछला पहर था मगर शाजिम की आंखों से नींद दूर थी। वो हाथ में मोबाइल पकड़े कमरे में चक्कर काट रहा था। स्क्रीन पर युसरा का नंबर जगमगा रहा था। दिल चाह रहा था कि कॉल करे मगर ये अल्फाज उसके साथ धोखा कर गए थे। वो कैसे बताता कि जिस सोने की चिड़िया का शिकार करने आया था वो पिंजरे समेत उड़ चुकी है। आखिरकार उसने हिम्मत की और कॉल कर दी। थैंक गॉड शाजिम, तुमने फ़ोन तो किया। युसरा की आवाज़ में बेचैनी और हुक्म की आमेज़िश थी। मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, क्या हुआ? डैड का जनाज़ा हो गया, वकील से मिले तुम? कब वापस आ रहे हो? और सुनो, मैंने यहाँ लंदन में एक नया अपार्टमेंट देखा है, तुम आते ही डील फाइनल करनी है। शाजिम ने गहरी आह भरी, उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। युसरा, मेरी बात गौर से सुनो। क्या हुआ शाजिम, तुम्हारी आवाज़ क्यों कांप रही है? युसरा फौरन भाप गई। डैड ने सब कुछ बदल दिया। युसरा, मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत तब्दील कर दी थी। क्या मतलब वसीयत तब्दील कर दी थी? किसके नाम की? किसी चैरिटी को दे दी क्या? नहीं, नरमीन के नाम। एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। फिर युसरा की चीखती हुई आवाज़, क्या वो लड़की, वो 2 टके की लड़की, जो तुम्हारे लिए सिर्फ ज़रूरत थी, डैड ने सब कुछ उसके नाम कर दिया? ये कैसे मुमकिन है? तुम इकलौते बेटे हो। यही सच है युसरा। शाजिम ने दीवार पर मुक्का मारा। पावर ऑफ अटर्नी, गिफ्ट डैड, सब कुछ उसके नाम है। मैं इस वक्त अपने ही घर में मेहमान की तरह पड़ा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, बैंक अकाउंट्स, कंट्रोल्स नरमीन के पास है। शाजिम, तुम वाकई बहुत बेवकूफ़ हो। युसरा का लहजा सख्त, हाकमाना और तौहीन आमीज़ था। तुम वहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और वो लड़की सब कुछ ले उड़ी। तुम दुनिया के सबसे महंगे वकील भी कर लो, अब भी ये सब कुछ नहीं बदल सकता। शाजिम को लगा जैसे दिल पर खंजर चलाया गया हो। युसरा, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा शोहर हूँ, हम एक फैमिली हैं। फैमिलीज़ पैसों के बगैर नहीं चलते डार्लिंग। युसरा ने सख्त लहजे में कहा, जाओ और वकील का मुंह पैसों से भर दो। मुझे बस रिजल्ट चाहिए। कल कट गई। शाजिम दंग रह गया। युसरा, जिसके लिए उसने अपने वालिद को नाराज़ किया और नरमीन की ज़िंदगी बर्बाद की, आज उसके दुख में शरीक होने की बजाय धमकियाँ दे रही थी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। युसरा ठीक कह रही थी, पैसे से सब कुछ मुमकिन है। शाजिम ने कमाल साहब के दफ्तर का रुख किया। वो अंदर दाखिल हुआ, आंखों में रुत जगा और लहजे में मसनूई एतमाद। कमाल अंकल, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। कमाल साहब ने स्टाफ को बाहर जाने का इशारा किया। फरमाएं शाजिम साहब। शाजिम कुर्सी पर बैठा, जेब से चेक बुक निकाली और बोला, देखिए अंकल, जो हुआ सो हुआ। डैड जज्बाती हो गए थे लेकिन आप तो प्रैक्टिकल आदमी हैं। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी एम्पायर एक अनपढ़ और घरेलू लड़की नहीं चला सकती। ये बिज़नेस तबाह हो जाएगा। बीबी नरमीन एमबीए है शाजिम साहब, वो अनपढ़ नहीं है। कमाल साहब ने नरमी से कहा, जो भी है। शाजिम झंझला गया। उसका बिज़नेस से क्या लेना-देना? मैं सीधी बात करता हूँ, आपको ब्लैंक चेक देने को तैयार हूँ। बस ये साबित करें कि डैड वसीयत करते वक़्त होश में नहीं थे या कोई कानूनी चाल चलें, जिससे गिफ्ट डैड कैंसल हो जाए। मैं आपको इतना दूँगा कि आपकी 7 नस्लें बैठकर खाएँगी। कमाल साहब ने फ़ाइल बंद की और आहिस्ता से कहा, शाजिम बेटा, तुमने अपने बाप को कभी पहचाना ही नहीं। उन्होंने मुझे अपनी दौलत का मुहाफ़िज़ नहीं, अपनी इज़्ज़त का अमीन बनाया था। ये ज़मीर का सौदा नहीं है जो तुम चेकबुक लहराकर कर रहे हो। हर चीज़ की कीमत होती है। कमाल साहब, शाजिम ने गुस्से से कहा, होती होगी, मगर बेहराम अफंदी के वफ़ादारों की नहीं। कानूनी तौर पर ये केस वाटर टाइट है। वीडियोज़ मौजूद हैं, डॉक्टर्स गवाह हैं। तुम चाहे दुनिया का महंगा तरीन वकील भी रख लो, ये वसीयत नहीं टूट सकती। शाजिम बेबसी से सर पकड़ कर बैठ गया। कोई तो रास्ता होगा, कोई हल। कमाल साहब ने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, एक रास्ता है, सिर्फ एक।
शाज़िम की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। क्या? जल्दी बजाएं। अगर मौजूदा मालिक यानी बीबी नरमीन खुद अपनी खुशी से ये जायदाद तुम्हारे नाम कर दे, तो कानून कुछ नहीं कह सकता। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। शाज़िम ने तल्ख़ ज़हरीली हँसी में कहा, मतलब मुझे उसके सामने भीख माँगनी पड़ेगी? उसे भीख नहीं तलाफ़ी कहते हैं। कमाल साहब ने फ़ाइल बाँध की। आपने उसका मान तोड़ा, अब अगर वो चाहे तो आप पर रहम खा सकती है। फ़ैसला आपका नहीं उसका है। नरमीन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप मेरा जीना हराम कर चुके हैं शाज़िम। अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं, और जहाँ तक जायदाद वापस करने की बात है तो सुन ले, मेरी जूती की नोक भी आपको 1 रुपया वापस नहीं करेगी। ये दौलत मेरे लिए दौलत नहीं, मेरा इंतकाम है। मैं उसे अपने पास रखूँगी, उसे बढ़ाऊँगी, और आप देखेंगे कि जिसे आपने कमज़ोर समझा था वो क्या कर सकती है। मैं युसरा को ले आऊँगा। शाज़िम ने आखिरी हथियार फेंका। मैं कोर्ट जाऊँगा, शौक से। नरमीन ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। रास्ता खुला है, लेकिन याद रखें, अब अफंदी ग्रुप के तमाम चेक्स पर साइन नरमीन अफंदी के होंगे। अगर जेब खर्च चाहिए तो दरख्वास्त लिखे, मैं सोचूंगी। शाज़िम गुस्से से कांप रहा था, मगर वो जानता था कि वो बेबस है। वो पैर पटकता वहां से चला गया। अगले दिन से घर का नक्शा ही बदल गया। नरमीन ने घर में कैद रहने की बजाय दफ्तर जाने का फैसला किया। सुबह 9 बजे जब शाज़िम अपने कमरे में सो रहा था, नरमीन तैयार होकर नीचे उतर गई। वो बहराम साहब की स्याह मर्सिडीज में बैठकर, ड्राइवर अब अदब से दरवाज़ा खोल रहा था। जब वो पहली बार ऑफिस पहुंची तो पूरे स्टाफ में हलचल मच गई। सबको लग रहा था कि कंपनी अब डूब जाएगी। लेकिन नरमीन ने पहली मीटिंग में जिस अंदाज में फाइलें खोली, सवाल किए और फैसले लिए, उसने सबको हैरान कर दिया। कमाल साहब और बहराम साहब के पुराने मैनेजर्स भी उसके अंदाज से मुतासिर हुए। साहब, बीबी जी तो बिल्कुल बड़े साहब की तरह बात करती हैं। आज बीबी जी ने फैक्ट्री का दौरा किया। मज़दूर बहुत खुश हैं। ये सब शाज़िम के लिए जल्दी पर तेल का काम कर रहा था। वो घर में महसूर रह गया था। पासपोर्ट और कार्ड्स तो उसके पास थे, मगर बैंक अकाउंट्स खाली थे। जो थोड़ा बहुत कैश वो साथ लाया था, वो तेज़ी से ख़त्म हो रहा था। दूसरी तरफ युसरा का दबाव रोज़ बरोज़ बढ़ रहा था। शुरू में रोज़ कॉल करती और पूछती काम हुआ, फिर ताने देना शुरू किए। तुम वहाँ क्या कर रहे हो शाज़िम? 2 हफ्ते हो गए। यहाँ तुमने पैसे नहीं भेजे। अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो मुझे बता दो, मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कर लूँ। शाज़िम सैंडविच बन चुका था। एक तरफ नरमीन की सरटमोहरी और ताकत, दूसरी तरफ युसरा की लालच और मुतालबात। वक्त बह रहा था। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, फिर 2 महीने गुज़र गए। अब 2 महीने में शाज़िम का हुलिया बिगड़ चुका था। वो सारा दिन कमरे में बंद रहता, शराब पीता और सिगरेट फूँकता। वो लंदन वापस जाना चाहता था, युसरा और अपने बच्चे के पास, लेकिन खाली जेब के साथ वापस जाना युसरा की नज़रों में हमेशा के लिए गिरने के मुतरादिफ था। युसरा ने साफ कह दिया था, अगर तुम जायदाद के बगैर वापस आए तो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। एक रात शदीद बारिश हो रही थी। शाज़िम ड्राइंग रूम की खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। नरमीन अभी-अभी ऑफिस से वापस आई थी। वो थकी हुई लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था। शाज़िम ने उसे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा। उसके दिल में नफ़रत और बेबसी की लहर उठी। नरमीन, उसने पुकारा। आवाज़ में थक्कन थी, रऊनत नहीं। नरमीन रुक गई, मुड़कर उसे देखा। जी, ये कब तक चलेगा? तुम क्या चाहती हो? तुम मुझे मारना चाहती हो? शाज़िम की आवाज़ धीमी थी। मैं आपको क्यों मारूंगी शाज़िम? नरमीन ने सपाट लहजे में कहा। आप खुद को खुद मार रहे हैं। मैं तो बस अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, वो ज़िंदगी जो आपने मुझे दी थी। मुझे जाने दो। शाज़िम की आवाज़ में हिचकिचाहट थी। मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं लंदन चला जाऊँगा। कसम खाता हूँ कभी वापस नहीं आऊँगा, मुझे इस जहन्नुम से आज़ाद कर दो। नरमीन ने कुछ देर उसे देखा, फिर सकून अंदाज में कहा, जहन्नुम वो नहीं जहाँ आप रह रहे हैं शाज़िम। जहन्नुम वो है जो आप अपने साथ लेकर जाएंगे। आप लंदन भी चले जाएं तो क्या वो औरत आपको बगैर दौलत के कबूल करेगी? शाज़िम खामोश हो गया। ये वो सवाल था जिसका जवाब वो जानता था, मगर मानता नहीं चाहता था। 2 महीने गुज़र गए शाज़िम साहब। नरमीन ने घड़ी देखी। मेरे पास वक़्त कम है और काम ज़्यादा। अगर आपको वाक़ई भीख चाहिए तो मैं कल आपके नाम एक चेक लिख दूँगी। टिकट के लिए काफ़ी होगा, लेकिन याद रखें, यह आखिरी खैरात होगी। इसके बाद आप और मैं या इस घर का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। नरमीन मुड़कर ऊपर चली गई थी। शाज़िम वहीं खड़ा रह गया। खैरात, टिकट के पैसे। अब वो फंदी ग्रुप का वारिस टिकट के टुकड़ों पर पलेगा। उसने जेब से फ़ोन निकाला। युसरा के 10 मिस्ड कॉल मौजूद थी और आखिरी मैसेज उसकी आंखों के सामने था।
शाजिम के हाथ से मोबाइल फिसलकर कालीन पर गिरा। युसरा की धमकी, मगर धमकी अमेज़ आवाज़ अब भी कानों में गूंज रही थी। अगर इस हफ्ते फंड्स ट्रांसफ़र ना किए तो मैं तलाक के पेपर्स फाइल कर दूंगी। मैं एक लूज़र के साथ नहीं रह सकती। शाजिम के दिल पर एक खंजर सा चल गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो हर तरफ से हार चुका है। इधर जायदाद उसके हाथ से निकल गई, उधर मोहब्बत भी। युसरा का लंदन में दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका था और नरमीन की हकीकत ने उसे कमज़ोर और तन्हा कर दिया था। वो कालीन पर घुटनों के बल बैठ गया। आंखों में बाप का चेहरा, नरमीन की मासूमियत और युसरा की तल्ख हकीकत के अक्स तैर रहे थे। नरमीन की वो एक जुमला याद आया, जहाँ वो है जो आप अपने साथ लेकर जाएंगे। काफी देर बाद शाजिम ने हिम्मत जमा के वो उठा, मुंह धोया और लड़खड़ाते कदमों से नरमीन के पास गया। उसके पास अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, माफी मांगना। नरमीन लाउंज में सोफे पर बैठी लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसके चेहरे पर सुकून और हाकमाना वकार नुमाया था। शाजिम कमरे में दाखिल हुआ तो वह सर उठाकर उसे देखती रही। शाजिम धीरे कदमों से करीब आया और कलीन पर नरमी के कदमों में बैठ के सामने बैठ गया। जो शख्स कभी गरूर में खुदा बना फिरता था, आज सर झुकाए मुजरिम की तरह बैठा था। वो छोड़ गई नरमीन। शाजिम की आवाज़ बमुश्किल निकली। युसरा ने तलाक भिजवा दी है, उसे सिर्फ दौलत चाहिए थी। नरमीन खामोश रही। फिर उसने कीबोर्ड छोड़ा और आहिस्ता मगर पुख्ता लहजे में कहा, मुझे माफ़ कर दो शाजिम। शाजिम ने सर उठाया, आंखों में नदामत और आह भरी। मैं अंधा था। मैंने हीरे को ठुकरा दिया और पत्थर उठा लिया। डैड ठीक कहते थे, तुम ही मेरी असल वारिस हो, तुम ही मेरी इज्जत हो, मुझे माफ़ कर दो। वह नरमीन के पैरों को छूने को आगे बढ़ा, मगर नरमीन ने कदम पीछे कर लिए। वो उठकर खिड़की की तरफ गई। बाहर रात गहरी थी। माफ तो मैंने तुम्हें इसी दिन कर दिया था शाजिम, जब मैंने फैसला किया कि मैं जख्मों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगी। लेकिन माफ करने का मतलब ये नहीं कि मैं भूल गई हूँ। मैं जानती हूँ। शाजिम रोते हुए बोला, मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हम नई शुरुआत करेंगे। नरमीन ने अफसरदा मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नई शुरुआत सिर्फ कहानियों में होती है शाजिम साहब। हकीकत में टूटी हुई प्लेट जुड़ भी जाए तो दरार रह जाती है। हमारे दरमियान जो खलीज है वो बाकी रहेगी। वो मैं इसकी तरफ गई और एक भारी फाइल उठाकर शाजिम के सामने रख दी। ये क्या है? शाजिम ने हैरत से पूछा। ये वो सब कुछ है जिसके लिए आपने अपनी जिंदगी, अपने बाप और अपनी बीवी का सौदा किया था। नरमीन ने सुकून से कहा, अफंदी ग्रुप की तमाम फैक्ट्रीज, बैंक बैलेंस, शेयर्स और इस्लामाबाद वाले फार्म हाउसेस के ट्रांसफर लेटर्स, मैंने ये सब आपके नाम वापस कर दिया है। शाजिम दंग रह गया। तुम तुम ये सब मुझे वापस कर रही हो, लेकिन क्यों? डैड ने तो ये तुम्हें दिया था। क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। नरमीन की आवाज़ में बेनियाजी थी, जो शाजिम को मज़ीद छोटा कर रही थी। ये दौलत मेरे लिए नहीं, बहराम साहब की अमानत थी। मैंने उसे सँभाला ताकि ये बर्बाद ना हो जाए। अब जब आपको ठोकर लग चुकी है, मुझे उम्मीद है कि आप उसे ज़ाया नहीं करेंगे। ले जाएँ, ये सब आपकी सल्तनत है। शाजिम ने काँपते हाथों से फ़ाइल उठाई। और तुम कहाँ जाओगी? हम साथ रहेंगे ना? नरमीन ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, ये फ़ाइल आपकी है, लेकिन ये घर मेरा है। इसने दीवारों की तरफ इशारा किया। बहराम अफंदी ने मुझे बेटी कहा था। ये घर मेरी पनाहगाह है। शर्त यह है कि आप इस घर और मुझे छोड़कर जाएं। आप अपनी दौलत को लेकर कहीं भी महल बना सकते हैं, लेकिन इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं। शाजिम तड़प उठा। तुम मुझे घर से निकाल रही हो, मैं कहाँ जाऊं? तुम मुझे दौलत दे रही हो, लेकिन अपनी जिंदगी से निकाल रही हो। नरमीन ने सख्त लहजे में कहा, मेरी जिंदगी में आप 2 महीने पहले ही मर चुके थे शाजिम। मैं एक बेवफा मर्द के साथ छत शेयर नहीं कर सकती। दौलत आपकी कमजोरी थी, सो वो आप ले लें। इज्जत और सुकून मेरी ज़रूरत है, सो मैं रख रही हूँ। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। जाइए शाजिम साहब, बाहर ड्राइवर आपका इंतज़ार कर रहा है, वो आपको होटल छोड़ आएगा। शाजिम फाइल सीने से लगाए खड़ा था। उसके हाथों में अरबों की दौलत थी, लेकिन दामन खाली था। उसने नरमीन की आंखों में देखा। वहां अब ना मोहब्बत थी, न शिकवा, न नफरत, सिर्फ अजनबियत। सर झुकाए वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम पर महसूस हो रहा था कि वो कुछ पीछे छोड़ रहा है, जो इन कागजात से कहीं ज्यादा कीमती था। जब वो दहलीज पार करके बाहर निकला, नरमीन ने दरवाजा बंद कर दिया। बारिश के रिमझिम में शाजिम के हाथ में फाइल थी। सामने चमकदार गाड़ी खड़ी थी। वो अमीर था, बहुत अमीर, लेकिन तन्हा। युसरा जा चुकी थी, बाप मर चुका था और बीवी ने दौलत मुंह पर मारकर दरवाजा बंद कर दिया था। पछतावे का खंजर उसे चुभ रहा था। उसे अब समझ आ गया था कि बहराम साहब ने नरमीन को जायदाद क्यों दी थी।
اور آج نرمین نے وہ جائیداد واپس کیوں کر دی؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا ظرف دولت سے بہت بڑا ہوتا ہے۔ نرمین نے دروازے پر ٹیک لگائی، ایک گہرا سانس لیا اور ایک آخری آنسو اپنی آنکھ سے گرا کر خشک کر دیا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا، یہ گھر اب واقعی اس کا تھا، کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے خود کو سمیٹا، دوپٹہ درست کیا اور سکون سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ صبح کا سورج ایک نئی زندگی کا پیغام لے کر آئے گا، ایک ایسی زندگی جہاں وہ کسی کی کاغذی ضرورت نہیں بلکہ اپنی تقدیر کی خود مصنفہ ہوگی۔